Well, the government crackdown has intensified following the Pahalgam massacre that claimed 26 innocent lives. In a strong retaliatory move, 3 more houses of Lashkar-e-Toiba terrorists have been razed down across Pulwama, Shopian and Kulgam. Ehsan Sheikh, an LET operative, is believed to have arranged logistics for the attack. He was active in Pulwama and linked to the planning of the assault. The other houses belong to Shahid Ahmed Kute, LET in Shopian, and Zahid Ahmed in Kulgam. Kute and Ahmad are accused of being involved in anti-national activities for the past 3-4 years. This takes the total count to 5. Earlier, Adil Hussain Thokar and Asif Sheikh's houses were reduced to rubble in separate controlled blasts across Jammu and Kashmir. Sources have suggested that explosives were placed inside the homes of both these Lashkar-e-Toiba terrorists. Remember, Adil Thokar had in fact been named as a key accused in the Pahalgam bloodbath, while Asif Sheikh is also suspected to have played a key role in planning and executing the attack. In fact, my colleague Tejshri sends us this report where she goes on the ground and shows how bunkers are being cleaned up in parts of Jammu and Kashmir, essentially showing preparations for any sort of escalation. Before that, let's just listen in to what JP Nadda has said. जिस तरीके से आतंकवादियों ने जो पहलगाम में घटना की है, जिससे देश उद्वेलित है और प्रधानमंत्री मोदी जी से आशा के साथ इसका भरपूर जवाब देने की आशा रखी है। साथ ही साथ देश मजबूती से आगे इस संकट से बढ़े और माकूल जवाब उन लोगों को जो इसके पीछे दोषी हैं उनको दिया जाए, इसके लिए भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिले और उनकी सुबुद्धि शक्ति के माध्यम से भारत इस संकट काल की घड़ी से उभर करके आगे आएगा और मोदी जी के नेतृत्व में इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। After Prime Minister's statement that Mitti Mein Mila Denge, there have been series of operations which has been launched, and we are at this Kulgam location. Earlier, our colleagues were reporting from Pulwama, where we saw that how the location and the residence of these terrorists have been gutted down. This is the location of Zakir Ahmed, who was a LET terrorist, and he had joined the LET in the year 2020, and since then he has been very much actively. Adil Hussain Thokar is one of the key accused who was actively involved in the attack, and he was the one who had facilitated, and he had also traveled to Pakistan in the year 2018, and since then he went out of the radar. Later to that, we also saw that Asif Sheikh, who was from Tal Pulwama, his house was also demolished, and in the last night operation, Ehsan Sheikh's house and Shahid Ahmed house was also demolished, and this is a location where the family members have been trying to piece together whatever is left. The badly act of the violent attack which has been done from Zakir's side is certainly something which is leading to this kind of operation by the Indian forces, and this is going to continue. In the last 48 hours, 175 people have been detained for questioning who were working as the OGs of these terror networks. इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू के अरनिया सेक्टर में है, जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से महज कुछ मीटर्स की दूरी पर है। अरनिया सेक्टर एक बहुत ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती है, तब यहाँ पर कई बार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग भी होती है, जिसके कारण कई सारे जो आम नागरिक हैं वो भी इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए अब चूंकि पहलगाम में टेरर अटैक के बाद, आतंकवादी हमले के बाद, इस पूरे अरनिया सेक्टर में जितने भी
सारे ये कम्युनिटी बंकर्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। अब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आपको एक एक करके बताएगी कि कैसे ये कम्युनिटी बंकर्स काम करते हैं, कैसे इन्हें एक्टिवेट किया गया है और अब आगे आने वाली स्थिति में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो फिर कैसे लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए अंदर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कम्युनिटी बंकर जो है वो दिखता किस तरह से है। ये दरअसल एक अंडरग्राउंड बंकर है और इसी तरह के कई सारे बंकर अर्निया सेक्टर में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरा जो बंकर है जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है, इसकी क्षमता 70 लोगों की है। 70 से ज्यादा लोग भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन अंदर के जरिए आप तस्वीरें देखिए कि एक एक करके लोगों ने अब यहाँ पर सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि जिस तरह से स्थिति है तो स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। और इन बंकरों का मकसद सीमा पर होने वाली मोर्टर शेलिंग, छोटे हथियारों से फायरिंग, गोलाबारी और हमलों से ग्रामीणों को बचाना है। इन्हें आप लाइफ सेविंग बंकर्स भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वक्त इसी गांव के कुछ इसी क्षेत्र की महिलाएं भी मौजूद हैं, हमारे साथ सरपंच भी बात करने के लिए मौजूद हैं, बलवीर कौर जी, जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर इस बंकर को एक्टिवेट करने का इनका कारण क्या था और साथ ही साथ इसकी क्षमता क्या है और आगे ये लोग क्या कुछ इनकी स्टेप्स है जो लेने वाले हैं। बलवीर जी, क्या कारण लगा आपको कि अब ये जो बंकर है उन्हें एक्टिवेट कर देना चाहिए, कम्युनिटी बंकर्स को? कई समय से ये बंकर्स बंद पड़े हुए थे। देखिए बंकर्स हाउस जो सिंगल हाउस होल्ड वाले बंकर्स हैं वो तो यूज में रहते ही रहते हैं, बट कम्युनिटी बंकर्स का नीड हमेशा तभी पड़ते हैं जब कुछ ऐसे हालात बनते हैं। तो अभी हम कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आर पार का कुछ हो। और थैंक यू सो मच। तो देखिए इन्होंने बताया कि किस तरह से ये बंकर वाकई में बहुत मजबूत हैं और एक बार नहीं पहले भी कई बार इस तरह के कम्युनिटी बंकर्स ने यहाँ के सिविलियंस की, नागरिकों की रक्षा की है और अब चूंकि स्थिति तनावपूर्ण है इसलिए एक बार फिर से इन कम्युनिटी बंकर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। आप तस्वीरों के जरिए यही भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये मजबूत है और इसीलिए इसमें शेलिंग से या फिर फायरिंग से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं कम्युनिटी बंकर्स में छिपने के लिए आते हैं।